राजेश जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते टू ऑल। हेलो। परवीन जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? रंजना जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है सब? बस बढ़िया। जी जी जी। हेलो रंजना दी। हाय। हाउ आर यू? अच्छा। हेलो रंजना दी। हाँ, नमस्ते। गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। हेलो। अब बाकी परवीन अपना देखो हैंडल करो। प्रणाम रंजना दीदी। खुश रहो। कैसी है? ठीक है। हेलो रंजना मैम। परवीन, हेलो हाँ परवीन, रंजना। शुरू हाँ कर दो। रंजना बोलो। शुरू शुरू कर करो, दो। अभी तो 36 4 बज गया। पार्टिसिपेंट। चलो ओके हाँ चलो शुरू कर दो, 4 बज गया। ओके ओके। Good evening to one and all. It gives me immense pleasure to welcome and introduce one of our eminent scholar and senior teacher of our Vasanta College for Women, Dr. Ranjana Seth. She is the head of the Department of Economics of VCW. I, Dr. Parveen Sultana, Associate Professor of Painting, Vasanta College for Women, on behalf of Organizing Committee of Vasanta College and Gender Champion Committee, Department of Philosophy, University of Delhi, welcome you ma'am in the 7-day workshop on women's position in philosophy. I am very delighted to introduce Dr. Ranjana Seth ma'am. She is an associate professor in the Department of Economics of Vasanta College for Women, Rajghat, Varanasi. She has a rich academic excellence with 35 years of teaching experience. She has formerly also served the institution as acting principal and at present is the convener of the ICC or Internal Complaint Committee of the college, which is also working as a gender sensitization cell. She has, to her credit, a number of research papers, also delivered a number of lectures on economics and gender related issues. Today, in this session, she is going to deliver her scholarly note on feminism through ages in India, triumph and turmoil. Now, I would like to welcome Dr. Ranjana Seth, ma'am. Dr. Ranjana Seth. Thank you, Parveen. I thank the organizers for giving me an opportunity to speak today in this workshop, which has concentrated on a very important issue, that is women's position in philosophy. Let me begin by saying what Lord Denning had said. Lord Denning said that a woman feels as keenly, thinks as clearly as a man. She, in her sphere, does work as useful as a man does his. She has as much right to her freedom to develop her personality to the full extent as a man, and when she marries, she does not become the husband's servant, but in fact, she becomes his equal partner. If his work is more important to the community, similarly, is the work of a woman important to the family as well as the community.
Neither can go without the other, neither is above the other or under the other. They are both equal. क्या वास्तविकता में हम देखते हैं कि यही है? मेरे समक्ष हमेशा ये प्रश्न उठता है कि if what Denning has said is right, then why are we having such type of workshops? Why are we having such types of seminars, webinars, which discusses on women's issues? In fact, the truth is that there still prevails gender inequality. इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊं, मैंने आज जो टॉपिक चुना है आपके सामने कुछ अपनी बातों को रखने के लिए, वो है फेमिनिज्म थ्रू एजेस इन इंडिया। क्या वास्तविक रूप में हम फेमिनिज्म में इक्वालिटी को प्राप्त कर पाए हैं, इससे विजय प्राप्त कर पाए हैं, या फिर हम अभी भी उथल पुथल में लगे हुए हैं और अभी भी हम देखते ये हैं कि there is a lot of diversity which is prevailing throughout the globe, not only in India, but it is prevailing throughout the globe. इससे पहले कि हम अपनी बातों को रखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ से कि yes, I am a feminist and I am proud to be a feminist. But the word feminism has been misinterpreted by people. ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जैसे ही हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, जैसे ही हम बोलते हैं कि yes, I am a feminist, लोग people try to understand, yes, that person must be hating a woman, hating a man, sorry, must be hating a man. In fact, this is not what I feel feminist is. I would like to say here that quite simply, feminism is about all genders having equal rights and opportunities. It is in fact about respecting the diverse women's experiences, identities, knowledge, and strength, and striving to empower all women to realize their rights. It is about leveling the playing field between genders and ensuring that diverse women and girls have the same opportunities in life available, which is in fact available to boys and men. Being a feminist means simply in believing in equal rights for all genders. It is not at all about hating men. It is not about women being better than men. It is not about eschewing femininity. In fact, if there is true equality, it leaves none of us behind. I must say that even patriarchy tends by and large to be toxic for men too. अगर हम देखें तो पुरुषों को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उनको भी उलझन होती है जब हम हर वक्त ये कहते हैं कि यू आर ए मैन, you are a bread earner, you are a person who has to do everything in life. Yes, then we also say, when we say these type of things, and we also say men that आप रो नहीं सकते हैं, you cannot be emotional. And why you can't be emotional? Because you are a man. I believe and I see this in the men's perspective that even they feel a lot of harassment when we keep on hampering on their head that they are men. यहाँ मैं अलेक्जेंडर स्पीयरहेड की बात को लाना चाहूंगी अपनी इन बातों को रखते हुए। अलेक्जेंडर कहते हैं कि लाइफ इज नॉट ए कंपटीशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, इन फैक्ट इट इज ए कोलैबोरेशन. It is rather true if we say that each time a woman stands to fight for her right, we say that and we know that unknowingly or somewhere or the other,
all the women feel that she is standing for their rights too. ये बात कही है माया एंजेलियो ने। वो कहती हैं कि each time a woman stands up for herself without knowing it possibly, without claiming it, she stands for all women. और मेरे अनुसार इसी को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। फेमिनिज्म का मतलब कतई नहीं होता है कि हम हेट करें मेन को। हम एक्चुअली किस बात से हम यह कहना चाहेंगे कि वी आर स्टैंडिंग for the word equity. We are not standing for the word equality. There is a difference between the term inequality, equality and equity. Equality means हम same हैं. Yes. But equity का मतलब होता है कि fairness across genders होना चाहिए. And that is what women want. We as feminists want that we must achieve equity at all levels of life. We must not be taken as somebody who is neglected, but we must be taken as somebody who has a share in the economy, who has a share in the country's development also. मैं जब इस विषय को चुन रही थी, जब मैंने सोचा कि मैं क्या बात करूं, जब मुझसे अर्चना ने बोला, तो मैंने सोचा कि मैं जब अपनी बात को रखूंगी, क्योंकि आज तक अभी तक आप लोग काफी कुछ फिलॉसफी के कंटेक्स्ट में सुनते आए हैं। मेरा कंटेक्स्ट, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो कंटेक्स्ट होगा वो बहुत कुछ आपको ये बताने का प्रयास करेगा कि अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेयर इज वुमेन्स पोजिशन, व्हाट इज द प्लाइट ऑफ वुमेन इन टुडेज सिनेरियो, व्हाट was women before, यानी आप लोगों ने अभी तक तो बहुत कुछ सुन चुके होंगे एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी थिंकर्स के बारे में, उनके विचारों के बारे में। तो मैं बहुत ज्यादा उन बातों को न लाते हुए मैं थोड़ा सा संक्षेप में बस फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करूंगी कि थ्रू एजेस कैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट आया है, एंड देन आई वुड लाइक टू कम अप टू द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ द होल थिंग। I hope I will be able to share certain very valuable insights into this subject. If we talk about feminist movement, we have seen through Vedic ages, our country has had a long tradition of women who have resisted against the patriarchal attitude, even under societal pressures. In the literature of the early Vedic period, there are mention of several female scholars. So to name, गार्गी की बात हम करते हैं, माइत्रेय की बात हम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे और भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने स्टैंड किया उस समय, जिन्होंने अपनी बातों को रखी बेहिचक, और उसी के समक्ष हम देखते हैं कि आज जो हम हैं, बहुत कुछ उन लोगों का किया हुआ था जिसकी वजह से स्थितियां परिवर्तित हुई। इन द अर्ली पीरियड, वैदिक पीरियड, क्योंकि मैं फिलॉसफी की स्टूडेंट नहीं हूँ, हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में कहीं कोई गलती हो जाए, और हो सकता है कि मैं बहुत सारी बातें आपसे फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना कर पाऊँ। In the literature of early Vedic period, there are mention of several female scholars like Maitreya and Gargi, who raised voice and posed a number of questions to Yajnavalkya on Vedanta, stumping a man who had, in fact, never been left at the loss of words, and in fact, she tended to prove herself to be a stronger opponent rather than her male counterpart. Similarly, हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इतिहास के अंतर्गत, हिस्ट्री के अंतर्गत, हिस्ट्री हमें हमेशा रिमाइंड करता है about the feminist movement which was taken up by a number of females, and in that I would like to name Bibi Daler Kaur of the 17th century, Rani Lakshmibai. Then we can talk about Tarabai of Kolhapur and many more. And these females are actually remembered for their skill, for their diplomacy, for their bravery, which is tended to present
and fight against their political rivals. बीबी दलेर कौर की जब हम बात करते हैं तो मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। जब उन्होंने ये बात कही, जब वाजिर खान ने मजाक बनाया फीमेल आर्मी के ऊपर, तब उन्होंने ये कहा कि यू शुड नो दिस दैट वी आर नॉट वीक। वाजिर खान कहते हैं कि आप फीमेल आर्मी क्या करोगे, मेरे से क्या युद्ध करोगे, यू ऑल आर वीक। देन शी सेज दैट कि वी आर नॉट वीक, वी आर वेरी स्ट्रांग। इन फैक्ट शी सेज दैट we are hunters and not the haunted one and not the hunted one. So देखिए, उन्होंने उस समय 17वीं शताब्दी की बात हम करते हैं, उस समय उन्होंने अपनी बातों को इस तरह से रखी थी and she fought against Wazir Khan and won the fight. In fact, even before we attained independence, we have got a number of men and women who fought for rights. And we should not fail to remember those heroes who have contributed along with the females in this feminist movement. We talk about Raja Ram Mohan Roy, we talk about Ishwar Chandra Vidyasagar, then we talk about Rana Devi, and all these philosophers, all these people, they have tried to bring, they had tried to remove diversity, they had tried to bring justice for the women folk. ज्योतिराव गोविंदराव फूले का नाम हम लेते हैं, और जब हम इनका नाम लेते हैं तो इनके साथ हम नाम लेते हैं सावित्रीबाई फूले का भी नाम लेते हैं। और इन लोगों ने उस समय जो ट्रेडिशन थे, जो कल्चर थे, जो नॉर्म्स थे, उनके अगेंस्ट इन लोगों ने फाइट किया था। और सावित्रीबाई फूले को तो हम कहते ही हैं कि शी इज द फर्स्ट टीचर because she was the one who for the first time established school in Pune in the year 1800 something. 1800, I just don't remember the date exactly, it is 1890 or something like that. Along with this, coming more further forward, we talk about Sarojini Naidu, then we talk about our founder Annie Besant, and along with that, we also talk about what Gandhiji tried to say. We talk about Gandhiji, we talk about Dr. B.R. Ambedkar. All of these have contributed in their own ways for the feminist movement. Gandhiji कहते थे, to call a woman the weaker sex is a libel. It is that which is a man's injustice to women. He saw a woman as a personification of ahimsa, which means love and infinite capacity for suffering. बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको क्या हम मानते हैं कि वो एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने भी वुमेन के बारे में यही कुछ कहा था। उन्होंने कहा ये कि प्रोग्रेस अगर इकोनॉमी की हो भी जाती है तो उसको हम प्रोग्रेस नहीं मानते हैं जब तक कि वुमेन की प्रोग्रेस नहीं होती है। He further went at length to say that unity is meaningless without accompaniment of women, and education is fruitless without educated women, and education is incomplete without the strength of the woman. He was responsible for the introduction of the Hindu Code Bill, which allowed a woman the right to file a divorce petition and the right to inherit. ये थे हमारे कुछ बहुत प्रमुख लोग जिन्होंने हमारे स्ट्रगल में और फेमिनिस्ट स्ट्रगल में हम लोगों का साथ दिया, और आज बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने अवेयर की है, इन लोगों की वजह से ही आज हम हैं जहां हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज वर्तमान परिवेश में अगर हम देखें तो पाया ये जाता है कि despite the fact that women have broken the glass ceiling in many fields, yet gender inequality persists. The promotion and protection of the woman, however, still remains as a challenging work. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे एक्ट्स लाए हैं। उन्होंने जब उन्होंने वुमेन की प्लाइट को देखा तो बहुत सारे एक्ट्स आए, जिनसे मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी। जो एक्ट्स जब बनाए गए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये देखा जाए कि वुमेन को एक्सप्लॉयटेशन से, डिस्क्रिमिनेशन से, विक्टिमाइजेशन से एट द हैंड्स ऑफ द मेल काउंटरपार्ट, उससे उनको बचाया जाए और उस पक्ष को बचाया जाए जिसके प्रति इनजस्टिस हो रही है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे अपने प्रियम्बल की। What does the preamble of the Constitution of India promises to the citizens of the country? The preamble to the Constitution of India says that justice, socio-economic and political. अब आप ध्यान दीजिए शब्दों का। वो कहते हैं justice which shall be from the point of view of social, economic and political point of view. Liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith and liberty of worship. Justice is the pillar on which our constitution stands for. लेकिन वाकई अगर देखा जाता है तो क्या जस्टिस है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि विदाउट अटेनिंग जेंडर जस्टिस वी कैन नॉट अटेन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स which are being said in the preamble, which are being said in the constitution of a country. अगर हमारे यहाँ एक्सप्रेशन नहीं है, थॉट नहीं है, बिलीव नहीं लोग करें, तो where does justice stand for? Can a country progress if it doesn't have justice promoted to the woman? विवेकानंद जी भी यही कहते हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि अगर हम वुमेन को जस्टिस देते, एक वुमेन आर ब्रॉट फॉरवर्ड, देन ओनली इकोनॉमी कैन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस। आर्टिकल 14 अगर हम देखते हैं तो वो क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 को आप देखिए, वो क्या कहता है? इट सेज इट प्रोहिबिट्स अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 39A प्रोवाइड करता है राइट टू लाइवलीहुड। आर्टिकल 39C प्रोवाइड करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। Although there are a number of articles which has been implemented by the government regarding justice to be promoted, but I have taken up these 4 articles, Article 14, 15, 39A and 39C, because they talk about equality before law, equality, not to bring about discrimination. They talk about providing right to livelihood and also talks about equal pay for equal work. Unfortunately, what is the scenario actually? The scenario, unfortunately, is the equality of opportunity in employment or of status at present is merely codified in the law. Is that law means? What is the reality? वो हम सब जानते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आज वुमेन को जस्टिस नहीं मिली है। Yes, women has attained justice to a greater extent as it was, if we say, in 1970s. Women have got a number of laws, number of acts which has been passed. जिसमें हम नाम लेते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का नाम लेते हैं, हम नाम लेते हैं डाइवोर्स बिल का नाम लेते हैं, तो बहुत सारे एक्ट पारित किए गए। लेकिन yet, what is the situation? The situation yet is very alarming. The situation yet is very grim. And women still, even today, remain as an unequal partners. Women even today are bonded laborers. हम रोज सुनते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं? We see rape victims, women available for sale. और ये सेल वाली जो बात हम करते हैं तो इट इज नॉट अबाउट द सिटीज और समथिंग। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो गांव में अगर देखा जाता है या हम उसको
थोड़ा इंटीरियर बेल्ट पे जाते तो वहां ये चीजें आज भी होती। एंड दिस इज अ फंडामेंटल मैलेडी। ये एक बहुत बड़ा मैलेडी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि हम सब कहते हैं, आज हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा करते हैं, लेकिन क्या है एक्चुअली? इन चीजों को बड़ा गहनता से और भी ज्यादा सोचने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है जो मैं एंड में आपको बताऊंगी कि क्या होना चाहिए वैसे। अब मैं आपके सामने कुछ हार्श रियलिटीज रखना चाहूंगी, और ये क्योंकि इकोनॉमिक्स की मैं हूं, तो जब हम बात करने बैठते हैं तो बहुत सारे एम्पेरिकल एविडेंसेस को लेके बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, हम स्टैटिस्टिकल डाटा ढूंढते हैं और उनके आधार पे हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। मैं पीपीटी नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बड़ा कम समय दिया गया। एक्चुअली आई वाज टू स्पीक ऑन सेकंड, बट आई वाज आस्क्ड टू स्पीक यस्टरडे टुडे itself, so I could not make my PPT, but I would like to talk about certain harsh realities which I want to express. Every other day when we read newspapers and hear about countless instances of women being sexually harassed, abused, and proportioned in the workplace while they go about doing their job, the perpetrators are powerful. Upon point, who are the abusers? Abusers may be anybody. They may be from the film producers. The perpetrators may be film producers. They are directors. They are politicians. They are academicians. I don't say academicians do not do these type of things. There are examples of certain academicians also. There are academicians, so-called academicians, because academicians must not do these things. And a few of these victims have raised themselves. कुछ तो सामने आते हैं, कुछ विक्टिम्स जो होते हैं वो अपनी बात को सामने रखने से हिचकते हैं, और वो अपना नाम बिना बताए ही अपनी बातों को रखना का प्रयास भी करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि there are few of these victims who have braced themselves and chosen legal recourse. Others have chosen to name their harassers, but many, especially those belonging to the vulnerable, unorganized class. हम बात किसकी करते हैं? Unorganized class की, vulnerable class की। वो vulnerable class कौन होता है? जो गरीब वर्ग होते हैं, है ना? And vulnerable class, unorganized class, who just do not speak up. And why they do not speak up? उसके भी पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और मुख्य रूप से कारण क्या होते हैं? मैंने कुछ कारणों को सोचने की, समझने की चेष्टा की है, जिसमें मैं आपके सामने बताना चाहूंगी कि वो कारण क्या होते हैं। एक तो हम सब जानते हैं कि जहां हमने मुंह खोला, जहां किसी फीमेल ने वर्क प्लेस पे अगर उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो अपनी बात रखना चाहती है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। मैं यहाँ पे क्योंकि जेंडर रिलेटेड बातें कर रही हूँ तो इसलिए मैं फीमेल की बात बोल रही हूँ। बट what we see is that there is a risk of losing their jobs, or the fear that they may not be believed or taken seriously. ये भी होता है कि they are not taken seriously, और या फिर ऐसे की स्थिति आ जाती है कि they get stigmatized. उनको स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता, उनको अलग छोड़ दिया जाता, उनसे कोई फिर संबंध नहीं रखना चाहता है। तो ये सारी चीजें होती है, और विशेष तौर पे मैं यहाँ बात रखना चाहूंगी कि एक सबसे बड़ी समस्या जो वल्नरेबल क्लास के साथ होती है, जो अनऑर्गेनाइज्ड क्लास के साथ होती है, कि उनके सामने प्रश्न ये होता है कि उनको बहुत सारे दे आर नॉट अवेयर अबाउट द लीगल पर्सपेक्टिव, और दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब मैं आपके समक्ष रखूंगी एक 2012 की एक स्टडी के बारे में। 2012 में एक स्टडी कंडक्ट की हुई थी, जिसको कि ऑक्सफॉर्म OXFAM ऑक्सफॉर्म इंडिया एंड सोशल एंड रूरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है ये स्टडी। और इस स्टडी में वो ये देखने का प्रयास करते हैं कि दे फाउंड दैट द वुमेन मोस्ट वल्नरेबल टू द वर्क प्लेस कौन होती है, बेसिकली कौन वल्नरेबल होता है, किसको हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उससे पाया गया, उस स्टडी में देखा ये गया कि लेबरर्स जो होते हैं,
or 29% of the laborers are vulnerable. Domestic workers, 23%. Small-scale manufacturing industry workers, 16%. तो देखिए स्थिति क्या है कि मोस्टली वुमेन who work as contract workers, who are working as construction workers, maybe in construction industries, maybe working as domestic workers or any such industry, and who are actually vulnerable class, they suffer the most. According to the data of National Commission for Women, as reported in Hindu, अभी का डाटा है, हिंदू में मैंने पढ़ा है इसको, और जब मैं अपनी बातों को रख रही तो मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि मैंने जो भी कुछ आपके सामने रख रही है सारे सेकेंडरी डेटा होते हैं, नॉट प्राइमरी डेटा, दे आर ऑल सेकेंडरी डेटा। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने हिंदू में रिपोर्ट किया 3 जुलाई 2020 को। The chairperson Rekha Sharma attributed the rise in complaints to 2043 complaints, और ये कब की complaint है? Just after the pandemic, मतलब not after the pandemic is still going on, just after the lockdown period was over, a bit of the lockdown period was over. That is, we are talking about June 2020, from April to June 2020. There were 2043 complaints, and these complaints were made to the National Commission for Women. अब देखिए NCW क्या कहता है? NCW कहते हैं कि इसमें से 452 कंप्लेंट्स ऐसी थी जो रिसीव्ड हुई एज डोमेस्टिक वायलेंस in the month of June alone, and out of 2043 complaints, the highest numbers were received under the right to live with dignity at 603. This right takes into account the emotional abuse of the woman. There were 252 complaints under the harassment of married women. देखिए, मैरिड वुमेन के हैरेसमेंट का जो रेशियो था वो 252 कंप्लेंट आया, एंड अगेंस्ट डाउरी एज मनी एज 78 कंप्लेंट्स ऑफ रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप वर रिसीव्ड। अब आप ये बात समझिए कि इसमें सारी चीजें, सारी बातें नहीं आई होंगी, सारे आंकड़े नहीं आए होंगे। जो कुछ हिम्मत वाले लोग होंगे जिन्होंने ये समझा होगा कि चलो अब हम कंप्लेंट करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत इजी कर दिया है इन चीजों को वर्तमान में, तब उन्होंने ये चीजों को कंप्लेन किया होगा। उसमें से भी हम ये मान के चलते हैं कि अ वेरी वल्नरेबल अमाउंट ऑफ पीपल मस्ट हैव रजिस्टर्ड देयर कंप्लेन। दिस इज द इश्यू ऑफ वेरी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। कोविड-19 के समय हम क्या कहते हैं? बार बार हम इस बात को कहते हैं, स्टे होम, स्टे सेफ। We talk about stay home, stay safe. Where is woman safe? Is woman safe at home also? Don't you think that woman is locked inside their home with an abuser who abuses her? And is this not a tragedy for a woman? What is this? So, staying home as many a time with an insider law is a very important thing that we need to consider. The unfolding pandemic has shown that patriarchal principles of inequality and injustice renders the society and the government ineffectual in attempting to curb the crisis and to secure the basic rights to health care to all the women. अब कोविड-19 के समय अगर देखा जाता है तो ये तो हमने बात कही है NCW के पास जो रिपोर्ट आए हैं उसके बारे में, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं, अब हम आते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटीज को भी देखा जाता है। और साथ ही रंजना जी एक चीज मैं थोड़ी आपको रोक रहा हूँ। मैं परवीन जी से जानना चाह रहा था कि हम लोगों ने समय का कैसे डिवाइड किया है टू स्पीकर्स में।
परवीन जी, डॉक्टर परवीन जी हैं क्या अभी? राजेश सर, जी जी। ये 2 स्पीकर हैं हम लोगों के, तो वही 45 मिनट्स और वो हाफ एन हाँ, आवर और फिर लेकिन 15 मिनट डिस्कशन सेशन उसी तरह। अच्छा 45 उसके बाद हम लोग एक्सिट कर रहे हैं ये सेशन जी जी, कि पहले हम वही लोग समझ। मतलब दोनों स्पीकर को सुन लेंगे, लास्ट में दोनों का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, वो बेहतर है। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा जांचा परखा है ये वाला मॉडल, जी जी जिसमें दोनों स्पीकर से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है ना। फिर जी तो जी। मेरे ख्याल से 40 मिनट में हमको 40-40 मिनट दोनों स्पीकर को दे देना चाहिए। उसके बाद बाकी जो 20-25 मिनट का समय बचेगा वो हो जाएगा डिस्कशन के लिए। Okay. जी I जी। shall तो try to मैं cut short my thing, but there are many things that I want to talk. जी जी Okay. जी जी You 5 can cut मिनट में short the question hour. Let me speak जी out my views. जी 5 मिनट में आप कंक्लूड कर लीजिए। No, no, 5 5 मिनट minutes. I will take at least 10 minutes right now. I will complete it. Just give me 10 more minutes. I'll take some time because I want to explain certain things. So now I'll go a bit fast. I would like to speak about. So देखा ये गया कि the position, the persistence. अब एक स्टडी और मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। अब ये स्टडी रखने के पहले मैं कुछ और बातें कहूंगी। The persistence of patriarchal attitude has been a major factor impeding the women's progress in their careers. It may also be noted ironically, as men secure higher paying jobs, the female encounter societal pressures to abandon their careers. Annual Economic Survey 2017-18 says that a lack of institutional credit child support as family size shrinks is also keeping women at home. अब आप देखिए एक स्टडी जो कल पेपर में मैंने पढ़ी है 29 सितंबर 2020 को, जो आज पेपर में आई थी, ये कहती है टाइम यूज इंडिया 2019 का एक सर्वे हुआ था और ये किया था नेशनल सैंपल सर्वे के माध्यम से किया गया था। और इस सर्वे में उन्होंने क्या निकाला है, देयर इज हाउएवर अ वाइडर जेंडर डिस्पैरिटी with only 18.4% women participating in employment activities compared with 57.3% of the men, while men spend on an average 7 hours and 39 minutes, women spend on their employment only 333 minutes, that is 5 hours 33 minutes. Women का participation in unpaid domestic services for household cooking, cleaning, household management, इस सब में जाता है 81.2% each day, while men contribute only 26.1% each day. तो देखिए वुमेन जहां स्पेंड करती है 299 minutes per day, men spend करते हैं 97 minutes, and therefore this is the gender disparity. As per the survey of 2018-19, in the age group 30-59, the proportion of women attending the domestic duties rose from 46% to 65% in 2018-19. तो देखना ये है कि आज अगर हम देखें कि कितनी वुमेन हमारी सीईओ हैं, तो वो भी अगर देखा जाता है तो 29 women are as CEO. So why is it so? Let me now come up, because I have been given 40 minutes and I know that the next speaker must be waiting to speak and I have gone a bit lengthy. So I would like to say certain things that basically the major challenge that a woman always faces is the work-life balance. Those who can achieve the right balance will of course tend to succeed, and those who cannot have got problems. Economic literature suggest करता है कि most of the important problems जिसकी वजह से आज women excluded है, उनमें है number 1 education, number 2 अगर हम देखते हैं age of marriage, सोशल कल्चरल नॉर्म्स इसके बाद आते हैं, जिनकी वजह से हम पाते ये है कि हमारा वुमेन का पार्टिसिपेशन भारतवर्ष में यदि देखा जाता है एज आईएलओ एस्टिमेट के अनुसार यदि हम देखते हैं तो 23.4% ही है सर। जबकि अगर देखा जाता है दूसरी कंट्रीज की तुलना में, जैसे अगर हम भूटान का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ 58.3% है, चाइना का भी एग्जाम्पल यदि लिया जाए 60 है, और जबकि श्रीलंका का एग्जाम्पल लें या बांग्लादेश का एग्जाम्पल लें तो वहां भी अगर हम देखते हैं तो 35-36% के आसपास रेंज कर रहा है।
तो आखिरकार हमारे भारतवर्ष में why women labor force participation is less? I would like to say that it is quite true that apart from patriarchal issues, so long as there is gender disparity in the field of education, there is a problem. And therefore, what is necessary? What are the solutions that we need to make actually? I think we need to realize that in today's scenario, men to a certain extent are of course being supportive despite the patriarchal norms. We should not just blame patriarchy for fewer women in India's job force. हम यहाँ कहना चाहेंगे कि हम हर समय ये सोचें कि patriarchy की वजह से ऐसा नहीं है. आज हमारे men force have become very sensitive. They have started understanding these things. And so to talk about that, patriarchy is the only factor that women are contributing less or women's participation is less, that is not the factor. Apart from patriarchy, there are many other factors. And to name them, we need to blame our cities, infrastructure, the mindset, the course of certain misled patriarchal forces. And unfortunately, we need to talk about safe transport system, which we are lacking, safety at workplaces, hospitable working environment, parity of wages, discrimination, and many more. And more so, and more important, the trade-off between the burdens of work and the family has created an obstacle, and therefore women are not entering into the labor market. No single policy prescriptions can be proposed to advance labor market outcomes for women. The need of the hour is the awakening of the collective consciousness of the society. That is very necessary. The collective consciousness of the society, women's education and their economic independence is the key to eradicate the social evils against them. A wide social movement to inform women of the rights to overcome the menace of social evils against them is needed, particularly if we talk about the rural areas. And we need to also talk, despite the fact I would also like to say that the Government of India has recently taken a number of steps to promote women's development, which may be in the form of self-help groups, it may be in the form of Beti Bachao, Beti Padhao, Yojana, and many other schemes. I don't need to name them out here. There are a number of things. But apart from them, it is necessary to invest heavily in skills training and job support analysis. Further, organization. यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है जो प्राय कई ऑर्गेनाइजेशंस में लैक करते हैं, और वो क्या है? That further organizations should have a conducive environment at the workplace with supportive policies in areas like child care and other pro-family policies. And there must be the crèche which must be established in all institutions so that child care can be taken up properly. And apart from that, culture is very important. What is very important is that culture is very important factor in shaping the people's mindset when it comes to embracing and leveraging the upside of gender diversity. It is time to embrace the new perspective and seek a gender-balanced decision-making process to better returns in both short as well as long term. अब मैं अंत करने के पहले ये कहना चाहूंगी, क्या हम ये सब बातें कहकर ये कहना चाहते हैं कि should the future be female? No. It is not about women taking over the world, but about working side by side with men in rethinking the way we live on this planet. We need to use the equity approach to drive our solutions. That is, we need to think together. We need to think equal. We need to build smart
and we need to innovate for a change. We must bring about an equity approach and not an equitable approach. दो पंक्तियों के साथ मैं अंत करूंगी. The strongest action, ये मैं अपनी फीमेल काउंटरपार्ट के लिए कहना चाहती हूँ. The strongest action for a woman is to love herself, be herself, and shine amongst those who never believed that she could do something. I thank the organization once again for having allowed me to continue with what I wanted to speak regarding the feminist movement. What are the changes that needs to be formulated, both at institutional level as well as at the cultural level, at the mindset level, and not to talk only about female or male diversity in a very narrow sense, but to talk about all these things in a very broader perspective. I thank one. Thank you. Thank you, Ranjana Madam. On behalf of the organizing committee, I, Dr. Manisha Mishra, heartily thankful to Dr. Ranjana Madam, Dr. Ranjana Seth, for her very beautifully elaborated paper entitled Feminism Through Ages in India, Triumph or Turmoil. As now I've seen that in the chat box, we doesn't have any question answers. We can take up the question answer session after both the speakers completed their discussions. And a short formal thanks I would like to convey to Ranjana Madam, that you have beautifully discussed the ideas of Alexander, Maya Angelou, and you have focused on equity and discuss about the difference between the equality and equity. And equity means fairness based gender society, and where there should women should have access at all levels of life and all walks of life. And you have discussed beautifully about the ancient period, some of the examples of Maitri Yagavallaka's discussion to Tarabai and Lakshmibai. Then in the modern century, you have discussed about the contribution of Ranade and Vidyasagar and Jyotiba Phule. And you have also mentioned that despite all these opportunities, where we are lacking and where are some of the glass ceilings have been broke by women, but still in this pandemic era, you have beautifully discussed that how the stay home, stay safe. At one time we are saying, and the second time National Commission for Women is getting them all the complaints, 2043 complaints, and 453 among them are of domestic violence. Then how could we think about that home is safe for women? And what are the major challenges, the work-life challenge, and how the vulnerable class doesn't know the legal perspective, and what are the problems at workplace, and what are the problems faced by the contractual workers, basically the women contractual worker, what type of problem they are facing. You have discussed in a very comprehensive, lucid and informative manner, and how the various ranges of problems they are facing and what they should do, and what the need of the hour is the collective consciousness of the society. So I am thankful very much on behalf of the organizing committee, Department of Philosophy, Vasanta College for Women, and Gender Champion Committee, Delhi University. Very much thankful to you, madam. And now, and we are, you are just our family part, so it's my honor to listen to you again. And really, you have beautifully discussed the feminist dimension with your economic perspective from where you are. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Now I will welcome our next eminent speaker, Dr. Ritu Jaiswal, madam. As we come to know about her through this webinar, and definitely and in morning session, how beautifully madam has translated the lecture of Ganapati sir. It is definitely a beautiful achievement in her part, because we are getting some of the complaints that you should conduct our program in Hindi, and in a very lucid manner you have discussed the summary of sir's very brilliant lecture, and I am very much thankful to you, madam, for your wonderful job. And
Now, in this ninth technical session, we have our next speaker, Dr. Ritu Jaiswal. And before calling her for discussion on her paper, I will like to briefly introduce all of you to her. Dr. Ritu Jaiswal is an assistant professor at Department of Philosophy in University of Delhi. Her areas of interest include social and political philosophy, gender studies, media studies, and she has various publications, paper presentations, and research publications in several national and international forums. Among several other conferences which she has organized, she was also the convener of the first ever All India Philosophy Graduate Conference organized under the auspices of ICPR to provide a platform for young philosophy scholars. She is currently supervising 4 PhD theses, on postdoctoral work, and supervised 3 MPhil dissertations in the field of gender studies. She has been awarded with Gandhi Award from Gandhi Bhavan, University of Delhi. She is also mentoring Gender Champion Committee. All of you are aware that it was the organizing committee also of this workshop. She is mentoring the Gender Champion Committee of the department for last 3 years. So on behalf of the committee and especially from the Basanta College for Women Family, I welcome you, madam, for your discussion on the paper entitled Feminism, a Discussion. Thank you so much, Manisha ji. Am I audible to all of you? Yes, madam. Okay. बहुत मुश्किल है जब आपके पहले किसी एक स्पीकर ने अपने लेक्चर की शुरुआत ही कर दी हो कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, और उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। तो उसके बाद उनके लेक्चर को रुकवाना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनजस्टिस सा लगता है, क्योंकि जब इस पूरे वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन ही हुआ है इस बात के लिए कि हम आवाज सुने फेमिनिज्म की भी, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही बुरा लग रहा था कि टाइम की कमी की वजह से हमें रंजना मैम को रोकना पड़ा, और इसीलिए मैंने कहा कि आप उन्हें बोलने दें, क्योंकि एक तो वो बहुत सीनियर स्पीकर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया रियलिटी को एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और इंडियन पर्सपेक्टिव को भी उन्होंने इंक्लूड किया, दैट वाज रियली वेरी इम्प्रेसिव and very thought provoking. So I actually didn't want her to get disturbed because of my lecture, because this lecture which I have to give is quite extempore, because I was not actually included in the panel list, but due to some problem I have to speak now. I will try to I will try to brief out my lecture in a few lines so that we can also have a question answer session, and since I'm a part of a organizing committee, so I will have to take care of that as well, and I will be bilingual. हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही प्रयोग करूंगी ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे कि लैंग्वेज नहीं समझ में आई। मेरा जो प्रश्न है जिससे मैं शुरू करना चाहूंगी अपने इस लेक्चर को, वो ये है कि जो टॉपिक है फेमिनिज्म डिस्कशन के बारे में मुझे बेसिकली बात करनी है, और ये डिस्कशन में इस क्वेश्चन से शुरू करना चाहती हूँ कि आखिरकार क्या ऐसा कारण था कि विमेन ने अपने पार्ट पर एक मूवमेंट की शुरुआत की। जो हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात करते हैं, मैं उसका एक एग्जांपल बस ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि और जगह पे मूवमेंट्स नहीं हुए, लेकिन जब भी कोई मूवमेंट होता है, चाहे वो एक विमेन के द्वारा किया गया मूवमेंट हो या दलितों के द्वारा या ब्लैक पीपल के द्वारा, जब भी कोई एक मूवमेंट किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। वो रीजन ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति ने कुछ उसे खाने को ना मिला हो तो वो सड़कों पर आ जाए, या फिर कोई 2 व्यक्ति है उसे खाने को ना मिला हो तो वो सड़कों पे आ जाए, या 1-2 के साथ कुछ अन्याय हुआ हो तो वो सड़कों पर आ जाए। हमें बहुत अच्छे से पता है, वी नो वेरी वेल दैट व्हेन इट कम्स टू द लेवल ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन, देन ओनली इट transforms into a form of a revolution. So we know that behind the first wave of feminism, there was a dissatisfaction, from the side of women, from the side of so many, Western countries' women,
that they were facing, that there are so many things which they are not getting. Actually the rights, the way we talk about these rights, like कि हमें political rights होने चाहिए, हमें legal rights होने चाहिए, हमें property के rights मिलने चाहिए, ये सारी चीजें जब उन्हें नहीं मिल रही थी तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि हमें क्यों नहीं मिल रही है और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और आवाज उठाने की जो आवश्यकता होती है, जो नेसेसिटी होती है, उस चीज से निकल कर आती है जब आप सोचते हो कि मेरे में और जो दूसरे पक्ष पर है उनमें कोई अंतर तो नहीं दिखता, और अगर कोई अंतर नहीं दिखता तो इस तरीके का पक्षपात आखिरकार क्यों है। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से इस बात को देखना शुरू करें तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के दौरान ही औरतों ने ये समझ लिया था, और हो सकता है कि उसके पहले ही ये रियलाइजेशन हो गई हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता या मैंने नहीं पढ़ाई की उतनी, कि औरतों ने ये समझ लिया था कि यहाँ पे डिफरेंस जेंडर का है, और जेंडर का डिफरेंस किसी भी तरीके के सोपान क्रम को नहीं लाता, किसी तरीके की हायरार्की को नहीं लेकर आता। और अगर हायरार्की को नहीं लेकर आता है तो क्यों ऐसा है कि कुछ राइट्स जो है वो सिर्फ लिमिटेड हैं पुरुषों के हाथ में, जबकि और जो दूसरे जेंडर्स हैं, खास करके जो विमेन हैं, उनको इन राइट्स से हटा कर रखा गया, उनको ये प्रोवाइड नहीं किया गया। तो मैं इस क्वेश्चन से अपने लेक्चर की शुरुआत करना चाहती थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखें तो जो ये डिससेटिस्फैक्शन है, वो डिससेटिस्फैक्शन इस एस्पेक्ट से आता है कि उन्हें समझ में आता है कि वो इक्वल हैं, लेकिन वो इक्वल समझे नहीं जा रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें अपने राइट्स की मांग करनी पड़ रही है। और जब किसी चीज की मांग करनी पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे पावर के बीच में एक अंतर है, किसी के हाथ में पावर है और किसी के हाथ में पावर नहीं है, और इसीलिए जो दूसरा पक्ष है जो मांग कर रहा है वो ये सोचता है कि जो दूसरी तरफ का पक्ष है उसके हाथ में ये पावर है कि वो उसे वो राइट दे सकता है, तो ये मांग के रूप में आया। जबकि अपने आप में फेमिनिज्म इस लैंग्वेज को ही डिनाई करता है कि हमें किसी भी चीज को मांगने की जरूरत है या फिर किसी और को हमें कोई चीज देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ राइट्स जो हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें तो मिलने ही चाहिए थे, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स लाइक मैन। सो जब हम इस तरीके की बातों को उठाते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, जो ये हायरार्की का स्ट्रक्चर आता है, वो हायरार्की का स्ट्रक्चर दो वजह से आता है। एक तो जो कि स्ट्रक्चरल लेवल पे काम कर रहा है, और एक दूसरा जो कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे काम कर रहा है। अभी हमने जो अपने प्रोफेसर रंजना मैम को सुना, उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चरल लेवल पे इनइक्वालिटी है वो काम करती है, और उस वजह से कितनी सारी विमेन को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये स्ट्रक्चरल लेवल पे जो इनइक्वालिटी है, जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है लड़कियों को या विमेन को, आखिरकार उसके पीछे रीजन क्या है और उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो रीजन एक तो ये दिया जा सकता है कि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी ऐसा तो है नहीं, जैसा कि सीटी मोहंती ने कहा है, जो कि एक पोस्ट कॉलोनियल थिंकर हैं, कि किसी एक दिन सारे मेन जो थे पूरी दुनिया के वो एक साथ बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम पेट्रियार्की शुरू करेंगे और सारी की सारी वुमेन जो है पूरे विश्व की, उनको हम सप्रेस करेंगे। ऐसा कभी हुआ तो नहीं। तो ये आखिरकार स्ट्रक्चर जो पेट्रियार्की है वो बनी क्यों और कैसे बनी, और ऐसा क्यों हुआ कि women were considered to be subordinated and men were considered to be the primary ones. So this hierarchical structure which was created and established in the society, what was the reason behind that? And we see that this, if we look at the structural inequality, then we will find out that, okay, it is due to some reasons. You can find out that probably it is because of the differences which exist between the two genders, because women are biologically weaker and different, because they have to become mother, and that is why they have to be dependent on others. So biological differences could be the excuse, okay, कि biologically हम एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए ये excuse बन जाता है कि ठीक है, चलो भाई women weak हैं और men को उनका ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन वीक तो बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे चिल्ड्रन भी वीक होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो उन्हें सीखने की जरूरत होती है। किसी वीकनेस के पीछे कोई एक पर्टिकुलर रीजन तो नहीं होता ना, वो एक स्टेज है, और हर एक पुरुष भी कभी ना कभी वीक होता है, कभी स्ट्रांग होता है। एक पुरुष दूसरे पुरुष की तुलना में स्ट्रांग होता है या वीक होता है, एक जो महिला है वो दूसरी महिला के स्तर से स्ट्रांग होती है या वीक होती है। तो आखिरकार ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस की जो बात है, उसमें क्राइटेरिया क्या है? अगर फिजिकलिटी इसका क्राइटेरिया है
तो हमने तो देखा है कि बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो कि लेबरर्स की तरह काम करती हैं और उनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ हम जैसी औरतों के तुलना में बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो रेसलर्स भी हैं, जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो कैन वी से दैट इट इज लाइक दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू बी पावरफुल फिजिकली? So this kind of discrimination, which has been established on the basis of the argument that they are actually biologically weaker, that gets dismantled entirely. And I don't believe that such is the case. Yes, they are biologically and anatomically different from each other, but that difference does not create any sort of hierarchy. At least it does not give you any reason for establishing such kind of hierarchy. तो अगर ये जो स्ट्रक्चर है हमें ये हायरार्की को एस्टैब्लिश करने की इजाजत नहीं देता या कोई एक्सक्यूज नहीं देता, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि ये हायरार्की है सोसाइटी में? लेकिन हम इस प्रश्न को ढूंढते चले जाएं तो शायद हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा और हम पीछे जाते जाते कभी इस पे पहुंच जाएंगे कि हम किस तरीके की सोसाइटी में रहते थे, फिर क्या हुआ, और शायद वहां से हमें कोई इसका आंसर मिलने वाला नहीं है। तो हमें सोचना ये होगा कि प्रॉब्लम जो सामने अभी खड़ी है हमारे, वो ये है कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, और ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी जो है उसको दूर करने के लिए हम क्या उपाय लेकर आ सकते हैं? स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे चेंजेस लाए जाएं, तो जो लीगल जो लॉज हैं उनको चेंज कर दिया जाए। लेकिन क्या जो लॉज हैं उनको चेंज कर देने से डायरेक्ट उसका रिफ्लेक्शन हमें सोशल लेवल पे नजर आता है? लड़कियों को तो अलाउड है कि वो रात के 12 बजे 2 बजे घर से अकेले निकल सकती हैं, कभी लॉ ने तो नहीं रोका है, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। इनफैक्ट मेन को भी नहीं रेस्ट्रिक्ट किया है, किसी को नहीं रेस्ट्रिक्ट किया है। लड़कियों को अलाउड है कि वो अकेले घूम सकती हैं, लेकिन ये क्या उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है? तो जो लीगल राइट्स हैं क्या उन्हें सोशल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? हमें इस पे सोचने की जरूरत है। और अगर सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो रहा है या सोशल स्टेटस जो है वो मेन की इक्वल नहीं मिल रही है और उन्हें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने को नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो मैं उसके रीजन के फॉर्म में जो आइडियोलॉजिकल हायरार्की है हमारी सोसाइटी में उस पर आना चाहूंगी कि कैसे जो एक आइडियोलॉजी हमने क्रिएट करके रखी हुई है जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं, हमें पता भी नहीं होता कि इस तरीके की आइडियोलॉजी को हम फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं और एक्चुअल में उसको जनरेट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है, ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है? ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ये है जो कि हमें बचपन से ही बिना सोचे समझे ही हम अडॉप्ट करते जाते हैं, उसमें हमारी कंडीशनिंग होती चली जाती है और हम दूसरों को भी वही सिखाते चले जाते हैं। और ऐसे आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट डिस्कशन को लेकर आना चाहूंगी जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है इस वर्कशॉप में। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं कुछ और पक्षों पे भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगी, लेकिन सिंस रंजना मैम ने बहुत सारी बातें उसमें से कवर कर ली हैं तो मैं उनको टच करने के बजाय एक दूसरे कॉन्सेप्ट को लेकर आना चाहूंगी कि आखिरकार इस आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसका ओरिजिन क्या है और वो कहाँ से आता है। तो वो जो ओरिजिन है वो यहाँ से आता है कि हम किसी भी चीज को जानते कैसे हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज क्या है और कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो ज्ञान है और जो नैतिकता है उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो उनके बारे में हमें अपने पेरेंट्स से पता चलता है, हमें ट्रेडिशन से पता चलता है, हमें बहुत बार अपने एजुकेशन से पता चलता है, हमें अपने दोस्तों से भी पता चलता है। तो कई सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से अपना जीवन चलाना चाहिए, किस तरीके से अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी शुड बी अडॉप्टिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड बी following, because as Ranjana ma'am has already argued that no one tries to come forward, because they are scared that if they will come forward and they will say something against the system, then obviously the system will try to get them out of the system. So it's like, this scariness inside a person, inside a woman, makes them very vulnerable in the sense इतने वीक बना देते हैं उन्हें कि वो कभी उस चीज के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। और ऐसा ही औरतों के साथ होता है, क्योंकि ट्रेडिशन के नाम पर जब उन्हें चीजें समझाई जाती हैं तो उन्हें ये लगता है कि जो ट्रेडिशंस हैं ये ट्रेडिशंस एक्चुअल में ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कि प्राकृतिक हैं, जो नेचुरल हैं, जिनके अगेंस्ट हम कभी जा ही नहीं सकते। यही हमारा धर्म है और ऐसा ही सारी औरतों को करना है, और कोई भी औरत
वो खुद ये मेंटेन करती हैं, वो खुद ये ध्यान देती हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी औरत उस चीज के अगेंस्ट चली जाए, और कोई भी औरत अगर उस परंपरा के अगेंस्ट जाने की कोशिश करती है तो विमेन खुद में ही उस विमेन को रोकने की कोशिश करती हैं और क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती हैं, ताकि कोई भी उस परंपरा को तोड़ नहीं पाए। लेकिन कहाँ पर ऐसा लिखा है कि किसी भी परंपरा को तोड़ना अपने आप में बुरी चीज होती है? अगर हम महाभारत उठाकर भी देख लें, अगर हम रामायण उठाकर भी देख लें, तो जो चर्चा है परंपराओं को लेकर, ऑब्वियसली एक तो परंपराएं हमेशा समय के साथ बदलती रही हैं, क्योंकि समय की जैसे जैसे डिमांड रही है, मांग रही है, उसी हिसाब से परंपराएं बदलती रही हैं। तो महाभारत में भी अगर हम श्री कृष्ण को कोट करें तो उन्होंने यही कहा है कि जो धर्म की परिभाषा है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो अगर सिर्फ परंपराओं में सिमट कर रह जाएगा तो वो उसको इतना रूढ़िवादी बना देगा कि हम उससे बाहर कभी निकल कर ही नहीं पा पाएंगे। तो एक वक्त ऐसा भी था कि जो सती सिस्टम था वो बहुत ही बड़े लेवल पे हमारे समाज में फॉलो हो रहा था, आज भी होता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लिमिट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमने समझा कि इस परंपरा में प्रॉब्लम क्या है। तो इस जो ट्रेडिशन है उसको क्वेश्चन करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन ये कैपेबिलिटी आएगी कैसे, और इस कैपेबिलिटी को विमेन के अंदर जनरेट होने से रोक कौन रहा है? सो here I would like to bring out the notion of Miranda Fricker, who has talked about epistemic injustice. She says that there are two kinds of injustice, epistemic injustice. One is testimonial injustice and the other one is hermeneutical injustice. ये दोनों तरीके की injustice क्या है जो कि epistemic level पे काम करते हैं? उनका कहना है कि विमेन जब बोलती हैं तो पहले तो ये होता है कि सिंस विमेन बोल रही हैं तो उनकी बातों पे कोई विश्वास ही नहीं करता। वो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बोल रही है, विमेन बोल रही है, तो उसकी बात की इतनी वैल्यू नहीं है, और उसे चुप करा दिया जाता है ज्यादातर टाइम। दूसरी चीज क्या होती है कि कई बार विमेन जिन परिस्थितियों में रहती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि वो अपनी परंपरा को ही मानकर चलती हैं कि वो परंपरा ही सब कुछ है, उसे वो प्राकृतिक मान के चलती हैं, जिसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो वैसी परिस्थिति में उन्हें खुद भी नहीं समझ में आता कि वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, और ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए, और उन्हें दूसरे लोगों को बताना चाहिए कि वो किस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। तीसरे तरीके की अंडरस्टैंडिंग, जो कि हर्मेनेटिकल इंजस्टिस का ही एक पार्ट है, वो ये है कि अगर विमेन समझ भी जाएं कि उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर वो उसको डिफाइन ना कर पाए जिस भाषा में समाज उसे समझना चाहता है, तो भी उनकी प्रॉब्लम नहीं समझी जाती है। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अगर जैसे हम मैरिटल रेप की बात करते हैं, तो मैरिटल रेप जो है, सबसे पहले तो विमेन के लिए खुद भी समझ पाना बहुत मुश्किल था कि मैरिटल रेप नाम की कोई चीज हो भी सकती है, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि एक बार शादी कर ली तो उसके बाद तो मैरिटल रेप नाम की तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, बिकॉज यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद योर ओन हस्बैंड, एंड हाउ कैन अ हस्बैंड रेप हिज ओन वाइफ। सो ये जो कॉन्सेप्ट था, भले ही उनको हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी इस प्रश्न को नहीं उठाया बिकॉज ऑफ द hermeneutical injustice, because they were not able to understand it. And then on the other hand, when a few women realized that there is something wrong is happening to us, so they tried to raise their voice against such kind of practice, and yet it was not admissible by the system, by the people. Why? Because the people, so-called people who are in authority, they were not capable of understanding that what kind of language is that, marital rape, how can it exist? A man has a complete authority over a woman when he gets married to that woman. So in that case, how can you say that a husband can rape his own wife? So since this definition is unacceptable in a particular circumstance, in a particular situation, that is why the problem which women are facing cannot be recognized, cannot be answered, because according to them, whatever women are facing is it doesn't have any value. And until or unless we realize that these problems which women are facing are actually beyond the understanding of patriarchal setup, because patriarchal understanding is not focusing on the problems of women, but it is talking about creating hierarchy between genders, so that there will be some people who will be on the upper side, there will be other people who will be on the lower side. So in this kind of hierarchical situation, obviously those people who are in authority will be defining what questions should be raised, what kind of questions should be recognized, and what kind of rights should be given, quote unquote, and what kind of facilities should be provided, quote unquote. So this kind of arrangement works in our society.
Okay, so I will just say a few more lines and then I will stop my lecture. That I would like to focus on another concept of gaslighting. Why this happens, that women are not able to raise their voice because of this concept of gaslighting. What is this gaslighting? Gaslighting क्या है कि हमें ये समझा दिया जाता है कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम जो सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हो। तो अगर मेरे मन में अगर कोई जैसे मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने क्लास में क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ जो कि टीचर को नहीं पसंद आ रहा, तो टीचर मुझे समझा देगा कि तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, वो जो है तुम्हें सही तरीके से पूछने का तरीका नहीं आ रहा। अगर इस तरीके की चीज हो रही है और तब भी स्टूडेंट जो है वो बार बार उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और उसे अगर बोलने नहीं दिया जाए, तो इसे गैसलाइटिंग कहते हैं, जहां पे उसे समझा दिया जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है या कर रही है वो एक्चुअल में सही नहीं है, वो सही अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड नहीं है। दूसरे तरीके का फॉर्म क्या होता है गैसलाइटिंग का, जहां पे वुमन के एक्सपीरियंस को इस बेसिस पे डिनाई कर दिया जाता है क्योंकि उसे एक वुमन के बजाय एक मैन समझ नहीं पा रहा, और वो उसे समझा देता है कि ठीक है तुम बेकार के परेशान हो रही हो, ये सब फालतू बातें हैं, तुम्हें इन सब चीजों पे सोचना नहीं चाहिए, इस पे विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तुम्हें बेकार में फेमिनिज्म वगैरह की बातें तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार को तोड़ देगा या हमारे समाज को बर्बाद कर देगा। इस तरीके की चीजें चलती हैं। या फिर कहीं पे कोई वुमन ये कहना चाहती है कि मैं ही सिर्फ अपने बच्चे को क्यों देखूं, तुम क्यों नहीं देखोगे, तो उसे समझा दिया जाता है क्योंकि तुम ये सब बकवास बातें कहाँ से कर रही हो, एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे अपने बच्चों को देखना चाहिए, ये उसी का ही वो है, एरिया है। तो इस तरीके से ये जो गैसलाइटिंग है, वो गैसलाइटिंग इतनी पावरफुल होती है कि हम अपने आप को खुद सेल्फ डाउट में ले आते हैं। हमें लगता है कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो वाकई में सच है, सही है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसकी कोई भी वैलिडिटी है असलियत में या फिर नहीं है, या फिर जो सामने वाला इंसान कह रहा है वही सही है और एक्चुअल में मैं गलत सोच रही हूँ। हो सकता है मैं किसी से प्रभावित हो गई हूँ, हो सकता है कि मैंने कुछ गलत चीजें सीख ली हैं, सोच ली हैं, इसलिए मुझे ये सब भूल जाना चाहिए और रेगुलर नॉर्मल लाइफ में जो कुछ हो रहा है उस नॉर्मल लाइफ को फॉलो करते रहना चाहिए। तो ऐसे में जो गैसलाइटिंग है वो वुमेन को अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने से रोकती है, अपने प्रॉब्लम्स को रेज करने से रोकती है, एंड अल्टीमेटली जब तक ये नहीं होगा, जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था कि आखिरकार कोई भी मूवमेंट क्यों स्टार्ट होता है, वो मूवमेंट इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि जो डिससेटिस्फैक्शन है वो एक लार्जर पॉपुलेशन के लेवल पे फेस किया जाता है। तो जब तक ये गैसलाइटिंग होती रहेगी, जब तक इस तरीके का एपिस्टेमिक इनजस्टिस होता रहेगा विमेन के अगेंस्ट, तब तक उन्हें रियलाइजेशन नहीं होगा। अगर रियलाइजेशन होगा भी तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक किसी भी तरीके का बदलाव हो पाना समाज में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे बहुत ही मुश्किल है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी। ओके, और ओके, नाउ आई वुड लाइक टू ask Dr. Parveen or Dr. Manisha to take over the charge of the session. Thank you, Ritu, madam. Thank you, Ritu, madam, for such a wonderful discussion, and definitely you have discussed some of the new aspects. और आपने जो सबसे बड़ी बात बताई कि जो कोई भी मूवमेंट होता है उसके पीछे डिससेटिस्फैक्शन होता है जिससे कि किसी मूवमेंट का जन्म होता है, और कैसे स्ट्रक्चरल और आइडियोलॉजिकल लेवल पर हायरार्की काम करती है, और कैसे पैट्रियार्कल सिस्टम जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है आखिर वो एक दिन में तो नहीं हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर देने मात्र से समाज में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि उसका क्या सोशल रिफ्लेक्शन है। अपने उसको बहुत ही समीचीन उदाहरणों के साथ अपनी बातों को रखा, उसको स्पष्ट किया, और कैसे महिला के भीतर का जो डर है जिसकी वजह से वो एक वल्नरेबल स्पीसीज बन जाती है और अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं। और आपने मिरिंडा हिल का भी टेस्टिमोनियल इंजस्टिस और हार्मेनेटिकल इंजस्टिस की बात की कि एक तरफ वो समाज के
वजह से अपनी बातों को रख नहीं पाती, और दूसरी तरफ वो परिस्थितियां ऐसी होती है कि वो किस प्रकार अपनी बातों को रखे, जैसे मैरिटल रेप का आपने उदाहरण दिया, और कैसे आपने गैस लाइटिंग के कंसेप्ट, ये 2-3 कंसेप्ट बिल्कुल इनोवेटिव थे। और सबसे अच्छी बात ये लगी मैडम कि आपने इसको बहुत जनरलाइज तरीके से चीजों को रखा, एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से, पूरा एपिस्टेमोलॉजिकल ऑन्टोलॉजिकल डिलिबरेशंस ना करके एक लेमन लैंग्वेज में आपने बातों को रखा। इसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये सेशन, ये फ्लोर ओपन करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए। आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर पुट कर सकते हैं, या तो आप अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस रखिए दोनों स्पीकर्स के लिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन को रिपीट। Dr. Ritu, Namita Yes. here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank. It was a wonderful exposition, and you really brought out many points very well. Specifically, when we speak about gaslighting, which happens with practically every one of us at various stages. मेरा सवाल ये है कि ये जो फेमिनिज्म की जो डिबेट हमारी चल रही है और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आलोक जी ने भी शुरुआत से यही कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं, दैट इज द मेन हु आर लिसनिंग टू द डिबेट्स आर इन माइनॉरिटी। तो जब हम ये चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो चेंज 2 लेवल्स पर आ सकते हैं। एक तो सबसे पहले जो बदलाव है, हम अपने अंदर के बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ women have to become aware about their own selves, and किस तरह से ये जो महिलाएं हैं ये अपने में बदलाव लेकर आ सकती हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये आ जाता है कि ये पुरुषों की मानसिकता जो है, और यहाँ पर मैं ये पितृसत्तक भी कह रही हूँ और साथ ही साथ महिलाओं का भी समावेश कर रही हूँ और पुरुषों का भी समावेश कर रही हूँ। तो इसके लिए हमारे पास क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, किस तरह की मेथोडोलॉजी को हम इसमें अपनाएं जिससे कि बदलाव जो है समाज में ये गहराई से किया जाए। क्योंकि आपने जैसे कि मैरिटल रेप की बात की है, सबसे पहले तो हम खुद भी नहीं मानते कि मैरिटल रेप है, हो सकता है, एंड अगर हम सखियों से सखियों को भी कहें इसके बारे में तो वो भी नहीं मानेंगी। तो पूरे समाज में बदलाव हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं? आई नो इट्स अ लॉन्ग रोड, फिर भी मैं आपके तरफ से जवाब, दोनों में से कोई भी जवाब दे दे। थैंक यू। Okay, Ranjana ma'am, would you like to respond or should I respond? अच्छा, thank you ma'am. मैं इसमें कुछ जोड़ दूं क्या? बिल्कुल आलोक सर। आपको कोई रोक सकेगा आलोक जी? नहीं, अगर रितु जी कहे तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँ। हाँ बिल्कुल। ये बात कई दिन से चल रही है और आपको याद होगा कि प्रोफेसर विभा चतुर्वेदी के प्रेजेंटेशन में भी ये बात उठ के आई थी कि लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, और इसको पहले से समझने के लिए आज आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया मैरिटल रेप का। इवन जब मैंने ये बात अपने पुरुष मित्रों से की तो वो भी नहीं इसको समझ पाए। तो ये जो बात अभी नमिता जी ने कही, इस बात में काफी दम है कि हमारे ऊपर जो ट्रेडिशन का, जो कल्चर का, जो रिलीजन का जो बहुत गहरा एम्बेडेडनेस है वो हमको इस दिशा में सोचने नहीं देता और हम बदलाव की इसमें सोच भी नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लॉस ऑफ ऑटोनॉमी है अगर हमको मिल भी जाए तो हम इसको बदलाव की तरफ कैसे मोड़ेंगे? सवाल ये है कि यदि हम कोई ऐसा विवेक अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते जो हमको ट्रेडिशन की मूल्यों, वैल्यूज और आज के मूल्यों के बीच चुनाव करने के संबंध में आज के मूल्यों के चुनाव की तरफ झुकाव दे, तब तक ये बात नहीं बन सकती। मैं इसको यूं कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश में मॉडर्निटी ऐतिहासिक रूप से आई होती तो ये तमाम मूल्यों का टकराव 19वीं शताब्दी में ही निपट गया होता। लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ मॉडर्निटी कॉलोनियल है, ओढ़ी हुई है, हमने आधुनिकता ओढ़ी हुई है, तो हमारे आधुनिकता के मूल्य बड़े ही सतही है। तो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी या फ्रीडम, ये हमारे क्या अभी मूल्य हो ही पाए हैं या नहीं हो पाए हैं? तो जब तक ये मूल्य नहीं होते तब तक हम ट्रेडिशन के विरुद्ध खड़े होने के लिए निर्णय ही कैसे लें? तो ये निर्णय लेने के लिए मैं समझता हूँ
कि ये खाली डिससेटिस्फैक्शन जिसकी बात आप कर रही हैं उतना नहीं काम करेगा, हमको कुछ आधुनिक मूल्यों से भी जुड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इस पे आप अपना रिस्पॉन्स दें, तब पूरी बात बनेगी। थैंक यू। Okay. Thank you so much, Alok sir, and thank you, Namita ma'am, for raising such important issues. Obviously, the way I have tried to present this lecture, I have tried to shorten it, and I have tried to brief it up so that I can include whatever points I wanted to present. But that is not enough in itself. So मैं जो जवाब देना चाहती हूँ, मेरा ये कहना है कि obviously ये जो पहले जो नमिता मैम ने बोला कि जो चेंज है, जो परिवर्तन है, जो खास करके अगर मैं सही समझ रही हूँ जो कि नमिता मैम ने पूछा है कि जो ये पितृसत्तात्मकता है उसको उसमें जो ये समावेशित मेंटालिटी है उसको हम कैसे चेंज करें, वो कैसे चेंज होगी। तो मेरा ये कहना है, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि और ये बात पहले भी प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने कही है कि कहीं ना कहीं से तो हमें शुरू ही करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो हमें इसकी शुरुआत एक स्टेप से ही करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि हम वो अपने क्लास के लेवल से करें या फिर अपने लेवल से करें, सिंस वी आर टीचर्स सो वी कैन डू दैट फ्रॉम द लेवल ऑफ क्लासेस, आवर क्लासेस टू। तो ऐसे में जो एपिस्टेमिक इनजस्टिस की बात मैं कह रही थी, मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट अगर हम इतने ओपन माइंडेड हो सकें कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है तो हम उसे सिर्फ इस बिना पर नहीं रिजेक्ट कर दें कि वो प्रॉब्लम किसी एक वुमन की प्रॉब्लम है, वुमन की तरफ से आ रही है, या वो प्रॉब्लम किसी एक ऐसे मैन की तरफ से आ रही है जो कि जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, या फिर इतना ज्यादा पावर है कि मतलब उसके पास क्या प्रॉब्लम होगी। तो या फिर किसी दलित की तरफ से आ रही है, या फिर किसी वाइट वुमन की तरफ से आ रही है, तो हम पहले ही मान लें कि अरे उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी, वो तो वेस्टर्न है, वो तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में ये जो पूरा का पूरा जो डिफरेंस है प्रॉब्लम्स को समझने का, जो कि एपिस्टेमिक इनजस्टिस की बात करता है, वो वुमन के लेवल तक ही सीमित नहीं है। हमें ये देखना होगा कि जब भी हम किसी की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं तो हम उसमें कहीं इग्नोर तो उसको नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू एपिस्टेमिक इनजस्टिस, कि हमें ये लग रहा है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम समझने लायक या सोचने लायक या ध्यान देने लायक नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर lived experience and also because of their situatedness. So that is first thing. And second thing is that we'll have to, when we start giving scope to the differences of opinion, to the differences of lived experience, then only we can understand that whatever we are actually thinking about the tradition or the way of living, there can be various perspectives of that. And then only, if only one woman is talking about her experience of marital rape, then probably, that could be understood by others as well, because we'll have to give a scope to listening to these problems of others. So ये जो, क्योंकि मैरिटल रेप के बारे में जो बात है उसको एक्सेप्ट ना कर पाना इसलिए भी है क्योंकि हम एक ऐसे ट्रेडिशन से बंधे हुए हैं जिसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और हमें पति को परमेश्वर मानने की ट्रेडिशन दी गई है। तो हम पति को या वुमन को भी, नारी को भी परमेश्वर क्यों माने? हम उन्हें एक इंसान ही मानते हैं, और हमें पता है कि नो पर्सन इज परफेक्ट। तो अगर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है तो गलतियां तो हर किसी से हो सकती हैं, और अगर गलतियां हो सकती हैं तो उन गलतियों का खामियाजा भी तो किसी को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो खामियाजा भुगत रहा है उसकी बात को बोलने से, उठने से हमें रोकना नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा इस तरीके की प्रॉब्लम से को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस। देखिए होता क्या है कि हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, the problem can be resolved if we actually try to, जैसा रितु ने कहा कि हम टीचर्स हैं, हम अपने क्लास लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। हम बिलीव करते हैं कि क्लास लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैमिली लेवल पे। अगर हम अपने बच्चों को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इफ वी टीच आवर चिल्ड्रन का मतलब होता है बोथ द बॉयज एंड द गर्ल्स, लड़कों को भी और ये बात समझानी जरूरी होती है कि दैट दे मस्ट नॉट डिसरिस्पेक्ट ए वुमेन, और दैट दे मस्ट ट्राई टू लिसन टू व्हाट अदर्स आर ट्राइंग टू से। और ये चीज कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर हम अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक संबंध अच्छा होता है, अगर हम एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं अपने बच्चों के सामने, तो आगे आने वाले दिनों में जो हमारा जनरेशन आएगा वो भी वही चीज को अडॉप्ट करेगा जो हम कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम घर में एक अच्छे स्वरूप में रहते हैं, एक अच्छा कॉम्पैटिबिलिटी के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक दूसरे को सुने, समझें
we talk to each other. If we talk to each other in a proper way, then naturally the child, be a girl or be a boy, I don't say that the problem arises in any married life only from the boy's end or only from the girl's end. Then if we try to explain it in a proper way, then I think that these type of issues will not arise. So basically, family is the main thing that where we can teach a person how to behave in the society, how to listen to others, how to respond to others, not through violence but in a proper manner. क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग, बिल्कुल टॉलरेंस लेवल नहीं होता है और हाथापाई पे उतर आते हैं, बातें करते हैं. क्या उन बातों को, उससे हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? अगर हम हस्बैंड वाइफ आपस में लड़े झगड़े तो उससे शिक्षा क्या मिलती है? बच्चे भी तो वही चीज सीखेंगे. दे कैरी फॉरवर्ड दोज थिंग्स. सो आई थिंक from the family, from the college level, from other level, I think, and moreover, I think कि जो there must be more workshops on these type of issues so that and young youths must be brought into these workshops. Youth का मतलब है सिर्फ लड़कियां ना बैठे उसमें, लड़के भी बैठे, लड़कियां भी बैठे और हर आदमी को अपनी बात को एक्सप्रेस करने का राइट दिया जाना चाहिए. तब मेरे ख्याल से ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे. That's what I think. For helping me out also Hello. in this question. Yes, Hello, Rekha sir. ji, please ask. Yes, I Rekha. have to answer Alok sir's Please. question as well, Okay. because he has raised this question that modernity has been like, you know, हमने ओढ़ा है, उसे अपनाया है. Modernity हमारे एक natural process के थ्रू नहीं आई, बल्कि ब्रिटिश सिविलाइजेशन के imposition की वजह से आई है. तो सर मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि जो मॉडर्निटी है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्निटी में, ये इसके पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो मॉडर्निटी के सारे एस्पेक्ट्स हैं वो उनको विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, विदाउट एनी इवैल्यूएशन उनको एज सच अपना लेना चाहिए. लेकिन अगर मॉडर्निटी हमें ये एक स्कोप देती है जहाँ पे हमें बोलने का मौका मिल सकता है अपने ट्रेडिशन के अगेंस्ट, और अगर ऐसी चीज हमें अपने कल्चर में नहीं मिल पाती है तो मुझे लगता है कि मैं मॉडर्निटी को प्रेफर करूंगी बजाय कि मैं अपने कल्चर को प्रेफर करूं. लेकिन हमारे अपने कल्चर में भी हमने देखा है कि क्वेश्चंस रेज करने की परंपरा रही है. पूरी इंडियन फिलोसफी अगर हम उठाकर देख लें तो वहां पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज हमेशा ही किया गया है, क्योंकि क्रिटिसिज्म के थ्रू ही डेवलपमेंट ऑफ थॉट हुआ है. तो वहां से भी मैं सोचती हूँ कि डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, चाहे वो हम ब्रिटिश सिविलाइजेशन के थ्रू देखें क्योंकि वहां पे भी हमने रिस्पॉन्सेज हमेशा दिए हैं, और अगर हम इंडियन फिलोसफी डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो भी हमने रिस्पॉन्सेज दिए हैं. तो ऐसे में जो जिस मोड़ पर आज हम आकर खड़े हुए हैं उस ऑटोनॉमी के मोड़ पे, मुझे इस टर्म ऑटोनॉमी से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑटोनॉमी ऐसा लगता है कि जैसे ऑटोनॉमी के नाम पर हमें फिर से गैस लाइट दिया जा रहा है कि आपको स्वतंत्रता दे दी गई है, आप जो चाहे वो बोले, लेकिन याद रखिए कि आपको स्वच्छंद नहीं होना है. लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में डिफरेंस कहाँ से आएगा? पता चला मैंने कहा कि मुझे अपने नाक में खुजली करनी है, तो सामने वाले ने कह दिया कि नाक को खुजली करने के लिए आपको हाथ उठाना पड़ेगा, और आप हाथ से उठाएंगे तो आपकी नाक से आगे चली जाएगी, तो आपको ऐसे खुजली करने की इजाजत नहीं है. तो ये कौन डिसाइड करता है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में डिफरेंस कैसे आएगा? तो ये मेरा कहना है कि ऑटोनॉमी जो है वो बेसिकली इस परिभाषा के आधार पर समझी जा सकती है कि मुझे जो मैं कहना चाह रही हूँ, ना तो उसे एक्टिव एग्रेशन से रोका जाए, ना उसे पैसिव एग्रेशन से रोका जाए, और ना ही उसे गैस लाइटिंग से रोका जाए. मुझे जो बोलना है मुझे वो बोलने दिया जाए, ना कल्चर के नाम पे रोका जाए, ना मॉडर्निटी के नाम पे रोका जाए. तो दैट इज लाइक, if I have understood your question correct, then that is my answer. Okay, Thank you, Dr. Ritu. Thank you. But we have to I just look have into. a comment to make and ये a फिर question. बात करें. I have just a comment to make, Dr. Ritu. It's not a question. Like, you know, sometimes I feel that in the name of empowerment, we women are getting more exploited. This is at times the thought which comes to my mind. Sorry, ma'am. Women are getting more exploited. Okay. Yeah, in the name Okay. of empowerment. Like, Yes. like we have been asked to do so many things in one go, whereas the men, at times I feel that they haven't progressed as much as the women folk have progressed in the past 100 years. तो फिर ये तो बहुत तकलीफ हो रही है इस तरह से. तो ये मेरा खुद का मानना है या अनुभव है जो कि मैं आसपास देख रही हूँ मेरे. It's just a मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से बिल्कुल.
और इसीलिए अभी भी डिससैटिस्फैक्शन है और वो रेवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। Thank you. Okay. रेखा जी Yes, yes. Again, come to gaslighting. इससे रितु आपने बहुत अच्छे से पूरा, मतलब अगर आपकी बात आज कोई सुन रहा होगा जो फेमिनिज्म जिसने पढ़ा ही नहीं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जानता ही नहीं, उसको भी सब समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज इट अबाउट। बहुत ही बेसिक बातें आपने करी। तो ये जो गैस लाइटिंग है उससे निकलने के लिए, जैसा कि आपने कहा, हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उस कोशिश को ही गैस लाइटिंग के द्वारा रोक दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने की बात सोचें कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट, तो कहाँ आपको लगता है कि देयर इज अ नीड टू चेंज? डोंट यू थिंक लाइक स्कूल करिकुलम? बिकॉज हम आज एज अ क्या कहें, एकेडमिशियंस, एकेडमिया, इन दिस फील्ड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड दिस दैट, एंड वी आर अवेयर। वो बात अलग है कि हम अवेयर हैं, फिर भी वी कैन नॉट समटाइम फेस द चैलेंजेस। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं who are well educated but they are not aware of these things. I mean, this gas lighting की बातें हो गई, scariness inside, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अंदर के किसी भय के कारण अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, but they are in a very good position. तो यहाँ कहीं ना कहीं वो जो मुझे लगता है कि माइंडसेट, अगेन इट कम्स टू, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं स्कूल के करिकुलम से लेके फ्रॉम द चाइल्डहुड इनफैक्ट ये चीजें कहीं ना कहीं डालने की बहुत जरूरत है। तो मैं चाहती हूँ इसमें अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज प्रैक्टिकली इनफैक्ट नीडेड, प्लीज। थैंक यू रेखा जी फॉर योर ऑब्जर्वेशन। एक्सक्यूज मी रितु जी, हाँ वो असल में मैं इसमें एक और इसी संबंध में मेरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। गैस लाइटिंग है ये, तो जो मेटाफर इसमें आ रहा है, ये इसको भी थोड़ी समझा दीजिए हम लोगों को। ये मेटाफर कैसे मतलब आ रहा है इस पूरे मामले में, गैस लाइटिंग? गैस जी लाइटिंग जी जी, गैस लाइटिंग। हाँ, तो ये जो है एक्चुअल में जो गैस लाइटिंग, ओके, पहले मैं रेखा जी की तरफ वो करती हूँ कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिया उसको अगर हम रियलिटी के लेवल पे लेकर आना चाहें तो ऑब्वियसली हमें शुरू करना पड़ेगा कहीं से कहीं से, और वो शुरुआत करिकुलम से पहले हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर पेरेंट्स को थोड़ा भी समझ में आए, अगर कि मतलब जैसे आपने मैं बहुत ही एक सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगी कि जनरली ये होता है, नो ऑफेंस अगेंस्ट एनी मैन और अगेंस्ट एनी वुमन, जो भी लोग ये बात कहते हैं ना बोलने के पहले कि रुको मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ, तो ये जो बोलने का तरीका ही है अपने आप में वो ये समझाता है कि आप सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ कि ये चीज क्या है असलियत में। यानी आप दूसरे को बोलने का मौका नहीं देना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अपने पर्सनल लेवल पे बदलाव लाने की जरूरत है कि हम दूसरों के व्यू को सुनने के लिए पेशेंट हो। एंड सेकेंड चीज ये है कि करिकुलम के लेवल पे अगर हम बात करें तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे भी गैस लाइटिंग होने लगे। वहां पे ये हो कि हमें समझा दिया जाए कि अरे फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसा मतलब विषय नहीं है जिसमें करियर हो, जिसमें कुछ वो हो, अरे बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे परिवार तोड़ने लगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हो सकता है कि इस तरीके से भी हमें गैस लाइट कर दिया जाए, और ऐसे में क्या होगा कि मतलब फिर से हम पीछे मुकर जाएंगे। तो जब तक ये जो गैस लाइटिंग की जो प्रॉब्लम है, वो गैस लाइटिंग की प्रॉब्लम बहुत ही नीचे स्तर से शुरू हो रही है, और उसको नीचे स्तर पे जब तक हम हैंडल नहीं करेंगे तब तक हम उसके ऊपर के लेवल पे बदलाव लाने की उम्मीद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में, चाहे एक लड़की दूसरी लड़की को समझाने की कोशिश कर रही हो या एक लड़का दूसरे लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा हो, हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को इनवैलिड कर दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें ये लगता है कि हम सही हैं और दूसरा ही पूरी तरीके से गलत है बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो अगर हम इसको अपने पर्सनल लेवल पे पहले शुरू करें तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये करिकुलम के लेवल पे आएगा, और करिकुलम के लेवल पे जब आएगा, डिस्कशन का पार्ट बनेगा, तो ये सोशल लेवल पर आएगा। सो दैट इज माय सजेशन as per your observation, and I know that you have already said that it is a very difficult thing to be achieved, as has been other objectives of feminism. So it's a long journey and a long way to go. So we'll have to discuss all these things again and again in order to resolve them. So Yes.
एंड राजेश जी, ये जो गैस लाइटिंग वर्ड है वो मेटाफर के रूप में मतलब ऐसा, जैसे वो कहते हैं ना कि गैस जला देना, ओके। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग इसको दे रही हूँ कि अगर सामने वाला जो है वो कहते हैं ना कि उसकी बत्ती नहीं जल रही दिमाग की, ओके, तो उसकी बत्ती ही नहीं जल रही दिमाग की, क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, उसे पता नहीं है कि सिचुएशन क्या है। जैसे पॉलिटिक्स के बारे में औरतों को जनरली बोलने से रोक दिया जाता है, क्योंकि उन्हें कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो तुम शांत रहो और मैं जिसे बताता हूँ उसे वोट दे दूं, ठीक है। अगर इस तरीके की बात होती है तो इसको कहते हैं दिमाग की बत्ती जलवा देना, ओके। एक तो इंसान की बत्ती खुद जलती है, दूसरी हम खुद जलवा देते हैं। तो ये जो गैस लाइटिंग है मेटाफर, वो इसी से ही कहीं ना कहीं आ रही है, जो मेरी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग, कि आप ये सोचते हो कि सामने वाला इतना समर्थ ही नहीं है, इतना केपेबल ही नहीं है कि वो अपने दिमाग की बत्ती खुद जला सके, तो आपको जलानी पड़ेगी। और आपको जलानी पड़ेगी तो वो आप कैसे करोगे? वो आप उसको मैनिपुलेशन के अलग अलग तरीके निकाल लेते हो। तो ये इसका मेटाफर है। थैंक यू, नाउ आई गॉट द पॉइंट। या थैंक यू रितु, इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग लगभग लोगों के दिमाग की बत्ती ही जला रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन दिमाग की बत्ती जबरदस्ती जलवाना चाहते हैं। एक अवेयरनेस तो आ ही रहा है कि कम से कम ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो बातचीत करने का तरीका है, जो जानने का हमारा तरीका, उसमें तो कुछ चेंजेस आएगा और हमारा व्यू चेंज होगा, देखने का तरीका हमारा चेंज होगा, हम इस बारे में सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि इन 7 डेज में इतना तो हम लोग कर पाएंगे। यस, कुछ तो कर पाएंगे। हाँ, कुछ तो कर पाएंगे। कम से कम हम ये करें कि हम दूसरे की बात को कभी ये बोलकर न रोकें कि तुम रुको मैं बताती हूँ, या तुम रुको मैं बताती हूँ। नहीं, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोग इस एटीट्यूड में बोलते हैं कि तुम्हें क्या बता, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट हमें सामने वाले की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि देखिए उसके बाद अगर वो चीजें नहीं आ रही है तब हमें कोई सजेशन देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात, मुझे आपकी बहुत अच्छी चीज। और बाकी तो फिलोसफी में लड़ाई तो वैसे भी चलती है। फिलोसफी पूरे जीवन में लड़ाई होगी या इंडियन वेस्टर्न कभी एक साथ नहीं होगा। नजरिया ही अलग है। थैंक यू अर्चना मैम। थैंक यू रितु मैडम एंड थैंक यू रंजना मैडम। आप दोनों ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेसिक बातों से लोगों जो यहाँ एनलाइटनिंग करना है, ज्ञान, हमारे ज्ञान चक्षुओं को आलोक की दिशा में मोड़ने की बात को स्पष्ट किया। और लगभग जो भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे एक प्रश्न रितु मैडम के लिए था वो एपिस्टेमिक इनजस्टिस के बारे में, लेकिन उन्होंने उसको डिस्कस कर दिया अपने डिस्कशन में। तो इसी के साथ ही हम लोग और अगर कोई क्वेश्चंस ना हो तो क्योंकि रितु मैडम इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की भी मेंबर है, तो आप लोगों के परमिशन से इस सेशन हम लोग इसको बाइंड अप कर सकते हैं। देखिए, प्रश्नों को रोकना तो हमारा कभी भी मोटिवेशन नहीं है, लेकिन ये भी पता है कि ऑर्गेनाइजर होने की एक हमारी एक वो बाध्यता भी है, तो उसे फॉलो करना पड़ता है। हालांकि रंजना मैम को जब सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनका लेक्चर सुनते ही चले जाए, बाद में देखा जाएगा कि मुझे क्या बोलना है। तो थैंक यू एवरीवन। If you have any questions or if you want to discuss these things further, either with Ranjana ma'am or with, then you can just approach us individually and we will be there to discuss these things further. हेलो, यस, मे आई रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर, हमें वो सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है जो भी रिसोर्स पर्सन्स आते हैं उनके राइटर्स के? इसमें हमें अर्चना मैम से भी मैं पूछना चाहूंगी, हालांकि उसमें हम राइटर जो ऑथर्स होते हैं। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट अर्चना मैम से भी है कि अगर ये मिल जाए तो मतलब अच्छा रहेगा इनफैक्ट हम लोगों के लिए। मैं कोशिश करूंगी राइटअप में लेकर के और उसे शेयर करूंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्पीकर से। थैंक यू मैम। मैं यहाँ देना चाहूंगी रितु जी और अर्चना जी को कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप एक बुक में ही ये सारे आर्टिकल्स लेकर आ जाइए, तो वो बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम लोग का पर्पस भी है कि ये आफ्टर वर्कशॉप हम लोग अभी इस पे काम करेंगे और सबके राइटअप लेंगे और इसी बुक फॉर्म में पब्लिश करेंगे। जी बिल्कुल।
ओके, थैंक यू सो मच। और अर्चना रवीना दी तो हमारी बड़ी बहन है, दीदी है, गार्जियन है, सब कुछ है। इनसे हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं और यहाँ पे उन्होंने सीखा इनसे। तो रवीना दी के लिए तो दिल से धन्यवाद, बाकी तो हमारे ऑर्गेनाइजर। थैंक यू अर्चना। नहीं, निश्चित रूप से रंजना मैडम, आपका पहले शेड्यूल दूसरे दिन था, लेकिन आपने कहने पर तैयार हो गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नहीं, अर्चना बोली तो मैंने PPT बना पाए कुछ ये मैडम आपने जो जितना लेकिन डिस्कस किया वही बहुत, आपने मतलब सारे डायमेंशंस को आपने डिस्कस किया। वैदिक पीरियड से स्टार्ट करके कोविड पीरियड तक आई है। ओके, थैंक यू everyone. थैंक यू। बाय।